जो 12th क्लास पास कर रहा है या तो फिर जो ग्रेजुएट हो रहा है, इन दोनों के लिए how they can get into this defense system? There are couple of entries which are available. First entry is called CDS. इसका full form है Combined Defense Services. Now there is second entry which is called FCAT. उसका full form है Air Force Common Admission Test. Now apart from that there is something called CAPF. It's Combined Central Armed Police Force. Apart from these three entries, there are multiple other entries like एक NCC entry होता है, एक SSC Tech होता है. So these are like 3 plus other 3, 5, 6 entries through which students can pursue a career in defense. हमारे साथ है आज विलास शिंदे, जो खुद एकेडमिक्स और एंट्रेंस एग्जाम प्लस इस एग्जाम को क्रैक कैसे करना है इसको बहुत क्लोजली जानते हैं, खुद IIM से पढ़े हुए हैं और इन सारे प्रोसेस में आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं और बहुत डीप नॉलेज है. कैन यू टेल अस कि ये सब प्रिपरेशन करते वक्त कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो बहुत रिपीटेडली बच्चे कर रहे हैं? जो मैं रिटन एग्जाम में जो मिस्टेक देखता हूँ एंड मोस्टली वो मैथ्स में ही देखता हूँ. इज देयर वन थिंग जिसको डिफेंस करियर स्टार्ट करना है आज से, दे शुड स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे राइट नाउ? हेलो एवरीवन, आज का हमारा सेशन उन सब लोगों के लिए है जो डिफेंस ये एक करियर ऑप्शन चूज करना चाहते हैं. इन नेक्स्ट 30 मिनट्स हम लोग इसके एंट्री राउट्स के बारे में बात करेंगे, प्रिपरेशंस के बारे में बात करेंगे, एग्जैक्टली क्या स्टेप्स है एनडीए जैसी एग्जाम्स क्रैक करने के लिए और डिफेंस में एंट्री करने के लिए. इन सब चीजों के बारे में एकदम प्रैक्टिकली स्ट्रक्चरली बात करने के लिए हमारे साथ है आज विलास शिंदे, जो खुद एकेडमिक्स और एंट्रेंस एग्जाम प्लस इस एग्जाम को क्रैक कैसे करना है इसको बहुत क्लोजली जानते हैं, खुद IIM से पढ़े हुए हैं और इन सारे प्रोसेस में आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं और बहुत डीप नॉलेज है. सो लेट्स वेलकम एंड स्टार्ट विथ वेरी बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वेलकम विलास, हाउ आर यू टुडे? Thank you ma'am, I am good. How are you? Good. So we'll start with very basic question and I want to start with, अगर कोई बच्चा है जो ये पॉडकास्ट देख रहा है और उसको लग रहा है कि हम लोगों ने डिफेंस में एंट्री करना चाहिए, what should be the first step he should think of? So thanks a lot for that question. It's a very good question, ma'am. So defense में अगर जाना है, the very first thing he should think about is their core personality trait, which is a discipline. A student who is preparing for defense exam should start their daily routine with extreme sense of discipline. अगर वो discipline से start कर देते हैं, he develops something called officer-like qualities. So that's very important trait to have. Okay, so this sets up the base कि आपको discipline चाहिए. Correct. But now let's talk about students Yes. जो 12th class पास कर रहे हैं या तो फिर जो graduate हो रहे हैं. Yes. इन दोनों के लिए how they can get into this defense system? Got it. So the students who have cleared 12th and who are pursuing graduation right now, अभी उनके लिए there are couple of entries which are available. So I will start with first entry is called CDS. इसका full form है Combined Defense Services. उसमें there are 4 different categories. एक होता है IMA Indian Military Academy, then INA Indian Naval Academy, AFA Air Force Academy, then there is a OTA. जो बच्चा इन चारों academies में जाना चाहता है, they can give a CDS exam. Once they crack CDS exam, there is a further process called SSB and then there is a medical test, then he can go. This was about CDS. Now there is second entry which is called FCAT. उसका full form है Air Force Common Admission Test. उसका भी people can get into the Air Force by clearing this exam. Now apart from that there is something called CAPF. It's Combined Central Armed Police Force. Exam देके भी students can go to a defense sector. Apart from these 3 entries, there are multiple other entries like एक NCC entry होता है, एक SSC Tech होता है, and there is I think there is a TGC also, technical graduate course also. So these are like 3 plus other 3, 5, 6 entries through which students can pursue a career in defense. Okay. तो ये जितनी भी आपने एग्जाम्स बोली ये 12वीं के बाद होती है या उसके पैरेलल में होती है या ग्रेजुएशन के बाद होती है? So these are exams for the students who have completed the graduation or on the verge of completed the graduation. So generally the thumb rule is कि by the time you join the institute, आपका graduation का पूरा सीन क्लियर होना चाहिए. ओके. सो ग्रेजुएशन कंप्लीट है और आप एग्जाम कंप्लीट कर रहे हो या तो फिर पास हो रहे हो. Correct. तो ये दोनों क्राइटेरिया जब मीट होता है देन ओनली यू कैन एंटर इनटू दैट इंस्टीट्यूट. Yes, there are
two more criteria also. Mhm. For many of these entries, there are age restrictions. So, like Okay. you should be within that certain age group, let's say 21 to 24. Hmm. There are educational criteria also कि let's say आपको INA जाना है तो आप इंजीनियर ही होना चाहिए. So there are certain age related criteria and certain education related criteria as well. अगर Okay. आपको more information चाहिए तो obviously audience can connect with me ओके offline. ओके Yes. शायद बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन Yes. होगी Yes. ओके ओके बट देर आर वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स बट जो बहुत क्रिटिकल होती है जैसे आपने अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बोला Correct. जब भी हम डिफेंस की बात करते हैं ना तो जितना हम लोग पढ़ते हैं या समझते हैं उसमें एज एक क्राइटेरिया होता है Correct. एजुकेशन एक क्राइटेरिया होता है Correct. फिर मैंने बहुत बार देखा है कि पर्सनालिटी आपकी कैसी है फिजिकल फिटनेस कैसा है ये भी क्राइटेरिया होता है Correct. सो कैन यू गिव वन एग्जांपल कि एग्जैक्टली क्राइटेरियाज कैसे होते हैं और क्या क्राइटेरियाज मैंने सोच के रखना चाहिए डिफेंस में एंट्री करने के लिए Okay. So I will keep the written exam out of it. हाँ. I will focus on SSB, which is called Services Selection Board. हम्म, To put in very simple word, अगर बताओ तो SSB is nothing but a interview process. बट उसकी एक खासियत होती है ये इंटरव्यू 5 दिन का होता है एंड इसमें अ पर्सन्स कैरेक्टर इज थरोली टेस्टेड. इफ आई हैव टू पुट इन वेरी सिंपल वर्ड्स, मनसा वाचा कर्मा मतलब मनसा हाउ यू थिंक, वाचा इज हाउ यू स्पीक एंड व्हाट आर योर डीड्स. इसको थरोली चेक किया जाता है एंड इसके बेसिस पे देर आर 15 क्वालिटीज कॉल्ड ऑफिसर लाइक क्वालिटीज. तो इस Okay. इंटरव्यूज में ये सारे क्वालिटीज देखे जाते हैं. सो ये 15 क्वालिटीज डिफाइंड है ऑलरेडी Yes. ये हम लोग देखेंगे इस 5 दिन में Yes, yes. Okay. These qualities are defined and they fall into these 3 categories which I told, मनसा, वाचा, कर्मा. उसमें एक होता है कि लाइक आपकी डिसिप्लिन भी होती है, आपकी कम्युनिकेशन भी होती है. अगर बच्चों को मुझे बताना है कि व्हाट यू शुड वर्क ऑन, आई वुड से एक कम्युनिकेशन स्किल होता है. बहुत बार हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं दे आर फ्रॉम टियर 2 टियर 3 सिटीज. कम्युनिकेशन इज वन स्किल वेयर दे लैक. तो आई वुड सजेस्ट कि इफ यू आर परसुइंग ग्रेजुएशन, प्लीज फोकस ऑन दिस बिल्डिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स. तो आप जब कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहे हो या स्पेसिफिक इंग्लिश की बात कर रहे हो या इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी टाइप की बात कर रहे हो It's both, I would say. If you are going in a defense sector, obviously you will be working with the international communities. इसलिए English becomes very important communication, important language in that way. Coming to the second part, introvert, extroverts. Of course, when you are entering a defense sector, you are going to lead a team, and to lead a team, you need to have a very good communication skills. So extrovert, introvert, that's fine. But if you are able to communicate with your team, if you are able to persuade them, motivate them, nothing like that. Okay, okay. So I think we very roughly spoke about कि कौन सी एग्जाम्स देना चाहिए और एंट्री क्राइटेरियाज क्या है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम लोगों ने प्रिपरेशन कैसा करना चाहिए क्योंकि रिटर्न एग्जाम्स है, Correct. इंटरव्यू है, Correct. फिजिकल भी कुछ क्राइटेरियाज है जो पास Correct. करने हैं. Correct. सो नाउ लेट्स सी कि आज कोई पॉडकास्ट देखता है और वो डिसाइड करता है कि मुझे डिफेंस में एंट्री करना है. सो हाउ हिज नेक्स्ट 6 मंथ शुड लुक लाइक. Okay. So I will break down this whole exam process into 3 parts. One is your written exam, one is your interview, and another is your medical test. So let's focus on the written part. Most of the defense exams, they have 3 components. एक रहता है मैथ्स का component रहता है, एक रहता है इंग्लिश का component, and third रहता है साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, such components. So if you are preparing for written exams and depending on the exam, by the way, maths, please focus on the maths because most of the times it's a make or break subject. मैथ्स ऑल्सो इन Yes. डिफेंस. Yes, it's अच्छा. a make or break subject. Like a lot of times, let's say in India, maths pass होना ही पड़ता है, single subject है. So, yes, and even in CDS also, like for INA, IMA entries, maths is very important. Like Okay. you would be surprised. A lot of times I have to tell my students, you are hired for your brain first and then for your physical strength. Yes. So, सो मैथ्स जस्ट बिकॉज कि बच्चे का लॉजिकल एबिलिटी अच्छा चाहिए. yes, yes, they Okay. logical ability अच्छे चाहिए. They should be able to think through situations because they will be facing lot of unknown situations. इसलिए maths good होना ही चाहिए. So I की तो अच्छा होना ही चाहिए. That's your Okay. first criteria. ओके. Now coming to the SSB part, उसमें आपके like I said core personality traits देखे जाते हैं. उसमें आपका confidence and communication skills बहुत important है. So students should focus on developing those first. And coming to the medical test, so basically they don't want bodybuilders or anything. They want someone, let's say, who can run 5 kilometers, someone who can do, let's say, 50 push-ups, 50 sit-ups. आप physically fit हो, once you are in, let's say, in arena, you can run, you can fight, someone like that. इवेंचुअली वो तो आपका फिजिकल फिटनेस ठीक करवाएंगे, उसका नो डाउट अबाउट दैट.
but Okay. you should be physically fit. So these are the three things students should be aware of when they are preparing for the defense exams. Okay. And you very closely work with all of the students जब ये Correct. एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हैं. Correct. So can you tell us कि ये सब प्रिपरेशन करते वक्त कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो बहुत रिपीटेडली बच्चे कर रहे हैं? Okay. Likewise also I will break down into 3 parts. जो मैं रिटन एग्जाम में जो मिस्टेक देखता हूँ एंड मोस्टली वो मैथ्स में ही देखता हूँ बिकॉज इट इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स. जनरली अभी बच्चों का क्या होता है कि एआई आया है तो वेन एवर दे आर डूइंग होमवर्क अगर नहीं हो रहा है तो चैट जीपीटी यस चैट जीपीटी में डालो आंसर देखते समझ में आ जाता है. व्हाट दे डोंट डू इज प्रैक्टिस नहीं करते. उनको क्लास में अगर कुछ पढ़ाया जाता है तो अरे समझ में तो आ गया बट वंस दे स्टार्ट सॉल्विंग दे रियलाइज ओके. एंड जब वो एग्जाम में चले जाते हैं तो प्रेशर तो अलग लेवल का रहता है तो उस टाइम रिकॉल भी नहीं होता है. अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेंगे आई वुड से प्लीज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस भी इफ यू वांट टू बी वेरी टारगेटेड ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लो. इफ यू सॉल्व ऑल लेट्स से लास्ट 5 years प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ना आपके यू वुड बी अहेड ऑफ मोर देन 80% ऑफ द क्राउड. बट वो लाइक डू इट डिलीजेंटली. दैट इज द फर्स्ट मिस्टेक. सेकेंड मिस्टेक इज कि वो लेट्स से यू आर इन अ ग्रुप सेटअप वगैरह दे डोंट टॉक अप. प्लीज स्पीक अप. अभी एसएसबी में भी एक पार्ट रहता है कि वेयर यू हैव टू सी अ पिक्चर राइट अ स्टोरी डिस्कस विद इन अ ग्रुप वो रहता है. तो अगर आप यू आर नॉट एबल टू स्पीक इन अ ग्रुप सेटअप तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है. तो प्लीज वेन एवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी प्लीज ट्राई टू स्पीक अप रेज योर हैंड्स गो टू द अटेंड द ग्रुप डिस्कशंस गो लाइक गिव सेशंस इन द क्लास. इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा. एंड कमिंग टू द थर्ड पार्ट इज लाइक हैपन्स कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो कि हेल्थ पे थोड़ा ध्यान नहीं जाता ओवरवेट हो जाते हैं. नॉट एन इशू बट एटलीस्ट यू शुड बी फिजिकली फिट. Okay, so when you talk about physical fitness, what do you think कि फिजिकल फिटनेस में ये एक बेंचमार्क है जो हर स्टूडेंट का होना ही चाहिए? वेरी ऑनेस्टली व्हेन आई से फिजिकल फिट लाइक आई सेड 3 क्राइटेरियाज अगेन कि आपको 5 किलोमीटर दौड़ना आना चाहिए. अच्छा, तो ये क्राइटेरिया है 5 किलोमीटर? हाँ, सो एक्चुअली जो एनडीए का जॉइनिंग लेटर आता है हाँ. उसमें तो मैंने 5 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा बोल दिया. इट्स आई थिंक बिटवीन 2 to 3 किलोमीटर्स you should be able to run. Okay. Then you should be able to do push-ups, you should be able to do pull-ups, you should be able to swim a sufficient amount of a distance. Okay. You should at least have ability to swim. आना ही चाहिए ऐसा नहीं है. Okay. But if you are physically fit, there are certain criteria which are like permanent rejections. For example, color blindness है, हाँ. वो अंदर नहीं जा सकते. हाँ, Knock हाँ. knees है, वो अंदर नहीं जा सकते. Flat feet है. But if you clear all those filters and you're टेक्निकली फिट फिजिकली तो आप अंदर जा सकते हो. अंदर जाके वो तो आपसे करवाएंगे नो डाउट अबाउट दैट. अच्छा, ओके. सो बेसिकली एक बेसिक प्रिपरेशन आप उतना करके जाते हो फिर अंदर जाके वो आपको और एक्सपर्ट उसके अंदर बनाते हैं. यस. ओके. सो आई वुड से कि आप पहले रिटर्न का फिल्टर क्लियर करो, आप एसएसबी का फिल्टर क्लियर करो. फिजिकली इफ यू आर जस्ट देयर दैट्स फाइन बट एटलीस्ट क्लियर दिस फर्स्ट 2 फिल्टर्स फर्स्ट. ओके. और रिटर्न के लिए आपने मुझे पहले ही पार्ट में बताया बहुत सारी एग्जाम्स बताई. करेक्ट. तो उसके लिए कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर? व्हाट आर द सब्जेक्ट्स जो लोग पढ़ते हैं उस रिटर्न एग्जाम को क्लियर करने के लिए? ओके. like I will consider NDA, CDS and FCAT these exams and these are like broad subjects. एक होता है maths. Depending on the exam, it will be advanced maths or arithmetic maths. When I say advanced maths, उसमें integration derivatives वो भी आ जाता है. Okay. Yeah. And when I say arithmetic maths, फिर it's like time and work speed distance time. उस level का रहता है. That is one subject. Second is English. English में grammar रहता है, vocabulary रहती है, again reading comprehension. The level is increasing day by day by the way. Then coming to the science. Now science is NCERT based. You should be science में भी physics, chemistry, biology आ जाता है. Depth of science is not as much for CDS and FCAT but for NDA at least 9th, 10th, 11th and 12th level का science के questions पूछे जा सकते हैं. Oh, okay. Now apart from science there are other subjects like history, geography, polity, economics and current affairs. So yeah. अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स है रिटर्न एग्जाम पास करने के लिए. और परसेंटेज क्राइटेरिया क्या होता है ये एग्जाम पास करने के लिए? Okay, so I will talk मतलब it varies from exam to exam but I will talk about NDA. NDA के 2 पेपर होते हैं, one is maths and second is GAT general ability test. General ability test. Maths में 300 मार्क्स का रहता है, minimum 25% which is equal to 75 मार्क्स होने चाहिए maths में.
Okay. Now GAT, it's a group of other subjects like English, Science, History, Geography. It is of 600 marks. उसमें भी 25% होनी चाहिए just to clear that subject, which is 150 marks. Now combine both. Out of 900, you need to pass these both subjects. Plus you need to have a 350 marks. Okay. Then you are become eligible for SSB interview. Okay. Yeah. Okay. And now in interview, is there any personality trait one should prepare? जैसे आप communication की बात कर रहे हो, confidence की बात कर रहे हो. Yes. So how should one should prepare for this? कैसे करना चाहिए? Okay, now coming to the, let's say I will take one by one. One is communication. Generally क्या होता है ना कि we smart students who are introvert, they are very good at writing English. हाँ. They are very good at listening English. They can understand. They are very good at reading as well. What they are not good at is communication. सुनना आता है but बोलना नहीं आता है. तो they should practice speaking more in English. वो practice कैसे करे कि भाई, let's say you have your colleagues, your friends, speak in English. कोई इंग्लिश के न्यूज़ देखो, उसमें डुअल एडवांटेज है कि आपका करंट अफेयर्स भी हो जाता है. क्लास में अगर टीचर बोल रहा है कि कैन समवन लेट्स से आंसर दिस क्वेश्चन, रेज योर हैंड, आंसर द क्वेश्चंस. चाहे गलत भी हो आंसर, डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज यू टुक द फर्स्ट स्टेप, यू रेज द हैंड. एक तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा है. अगर सही आंसर आया तो आपका प्रेज भी हो जाएगा. सो दिस आर स्मॉल थिंग्स व्हिच यू कैन डू टू इंक्रीज योर कम्युनिकेशन स्किल्स. बट जो आप करंट अफेयर्स की बात कर रहे थे, इसका भी नॉलेज होना जरूरी है. Yes, Okay. इसका knowledge is important because of course you are a defense personnel, so you should be aware of geopolitical things happening around you. ओके. Yes. ओके. तो इसका कोई एग्जाम होता है, कोई सब्जेक्ट होता है? Yes, so current affairs is a specific subject as such. ज़्यादा questions नहीं आते, but they do ask questions about the current affairs. For example, operations in मतलब ये इंटरव्यूज में पूछते हैं. एग्जाम में भी आ सकता है and अच्छा. इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है. ओके. Yes. मतलब एग्जाम में जो इतने सारे सब्जेक्ट है, Yes. वो तो करना ही है, प्लस करंट अफेयर्स का भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस आपको पता चाहिए. हाँ, you should be aware what's happening around your surrounding because during interview आपको पूछा जा सकता है कि let's say operation सिंदूर war. What's your opinion? Tell me about it. अच्छा. Yes. ओके. Now Trump is doing, let's say, Trump is doing lot of things. वो टैरिफ का क्या इम्पैक्ट है? Exactly. टैरिफ का क्या इम्पैक्ट है? हाँ. वेनेजुएला पे अटैक हुआ, उसका क्या हम्म. इम्पैक्ट है? Basically, they want to see कि how good an officer you will become because eventually you are the person who is going to protect this country. Am I giving my country in right hands or not? That's the thing they are trying to test. करेक्ट. करेक्ट. सो ये जब इंटरव्यूज की आप बात कर रहे हो ना, इतना करंट अफेयर्स और ये सब कुछ, आई थिंक इसके रिजेक्शन रेट्स बहुत ज्यादा है. Yes. रिजेक्शन रेट्स इंटरव्यूज के. Yes. सो व्हाट डू यू थिंक कि ये इतने रिजेक्शन रेट्स क्यों है? मतलब अगर कोई कंटिन्यूस दे रहा है तो व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस रिजेक्शन, अगर इतना प्रिपरेशन कर रहे हैं तो? Actually, the main reason is it's too high a competition. Okay. I will just give you some numbers about NDA exam. So NDA exam is a exam which students can give when they are in 12th or after 12th. उसमें अगर I have to throw some numbers, almost 8 lakh students appear for this exam. 8 लाख में से 8,000 बच्चा रिटर्न एग्जाम क्रैक करके इंटरव्यू को चले जाता है. ओके. हाँ, आउट ऑफ 8,700 स्टूडेंट्स की एक मेरिट लिस्ट आती है फाइनली. And out of those 700, 400 students finally enter the academy. If you do the math, you can see that 1% 1 in 1,500 students get selected. And that is extremely high competitive exam. करेक्ट. तो जो इंटरव्यू हुआ वो 900 बच्चे का हुआ, जो जिसका मेरिट लिस्ट लगा Yes, उसका. so 8 लाख में से 8,000 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. 8,000 लोगों को बुलाया जाता है. ओके. And उसमें से फाइनली 700 सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करते हैं. इंटरव्यू क्रैक करके दे गेट रिकमेंडेड बाय द वे. एंड उसमें से फिर वो मेडिकल टेस्ट भी हो जाती है उनकी. दे आर क्लियर्ड इन मेडिकल टेस्ट. फाइनली 700 की मेरिट लिस्ट बनती है. ओके. उसमें से 700, 400 आर इन एंड 300 आर इन वेटिंग लिस्ट. और रीजन सिर्फ कंपटीशन है इतने तैयारी के बाद? हाँ, मतलब लाइक गिवन द लेवल ऑफ कंपटीशन दे वांट बेस्ट ऑफ द बेस्ट. यस. सो आई थिंक देखो, हम आईटी में जब काम करते हैं ना, बहुत इजीली ऐसे बोले जाता है कि ऑफन फेल फास्ट. यस. ठीक है. सो ये क्या इंटरव्यू प्रोसेस में भी एप्लीकेबल है डिफेंस के, कि कितने दिन तक मेहनत करना चाहिए? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि ऑब्वियसली तुम डिफेंस में जा रहे हो तो तुम्हारा माइंडसेट है, अरे नहीं मैं हारा तो भी मैं फिर से करने वाला हूँ, मैं हारा तो भी फिर से करने वाला हूँ, राइट? तो उस जोश में अगर मैं कंटिन्यूअस इंटरव्यू देते ही रहा
सो डू यू थिंक दैट इज अ गुड ऑप्शन, या कैसे बंदे को पता चलता है कि नहीं इतना ही मैंने इंटरव्यू देना चाहिए, अब मैंने बैकआउट करके कुछ दूसरा कर लेना चाहिए? Good question. Actually, the good part about these exams is there is age criteria. Any which ways, if you are when I say NDA exam, you should be between 16.5 to 19.5. Once you are out of that age window, आप exam नहीं दे सकते. So I would say eventually exam will reject you. So you don't reject yourself. Let the exam reject you. अच्छा, तब तक ट्राई करते रहो. हाँ, reason being कि it's a once in a lifetime opportunity. अगर once you are out of that age window, कितना भी चाहो exam नहीं दे सकते. And think in a positive way कि it's not always about the destination, but the kind of person you become in the process, करेक्ट. that's much more important. अगर आप इतने rigorous process से जा रहे हो, you develop a personality which will help you a lot to achieve success in life later. करेक्ट. That's much more important part of it. मतलब अगर आप एग्जाम पास नहीं कर रहे हो, इंटरव्यू नहीं कर रहे हो, बट द पर्सन यू बिकम विल हेल्प यू इवन इन योर कॉर्पोरेट लाइफ, Exactly. फैमिली लाइफ, Exactly. दूसरे चीजों में भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो. Exactly. मतलब इतना मतलब you become such a strong mentally, physically and emotionally कि जिंदगी में कुछ और चीज आपको कुछ नहीं कर सकती. करेक्ट. करेक्ट. Yes. आप इतना टफ प्रोसेस बता रहे हो. आई एम नॉट श्योर द क्वेश्चन इज राइट और रॉन्ग, बट ऐसा कोई प्रोसेस है कि मैं प्रॉबेबली छोटा शॉर्टकट है, या तो फिर ऐसी कुछ एग्जाम्स है या प्रिपरेशन है जो अगर मैं पहले से कर लूँ तो मुझे 100% डिफेंस में एंट्री मिल ही जाएगा? 100% I won't say possible है, but obviously you can do certain things which can increase odds in your favor. ओके. मतलब आप कुछ कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. लाइक आई सेड कि इट्स ऑल अबाउट योर रिटन एग्जाम, देन योर पर्सनैलिटी और इंटरव्यू स्किल्स एंड देन मेडिकल फिटनेस. इसमें आप थोड़ा थोड़ा लेट्स से रिटन एग्जाम में इफ़ यू स्टार्ट अर्ली, क्या हो जाता है कि अभी बच्चे 10th स्टैंडर्ड के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं. गिवन द लेवल ऑफ कंपटीशन दैट्स आल्सो बिकमिंग अ बिट लेट. अच्छा. हाँ, ओके. तो यू शुड स्टार्ट. 10th के बाद भी लेट हो रहा है? हाँ, बिकॉज ओके. एनडीए तो 12th में होता है, 2 साल रहते हैं. 11th स्टैंडर्ड तो इसमें समझ में चले जाते हैं कि करना क्या है. नीट करना है, जेईई करना है, एनडीए करना है. 1 साल में कुछ होता नहीं. सिलेबस लाइक आई सेड दिस मेनी सब्जेक्ट्स, करेक्ट. दिस मच टाइम. स्टार्ट बिट अर्ली. मे बी अगर आपको एंड प्लीज फोकस ऑन मैथ्स. लाइक बच्चे बहुत इग्नोर करते हैं मैथ्स में को, बट इट्स वेरी मेक और ब्रेक टाइप ऑफ सब्जेक्ट. उसके बाद लाइक सेकंड इज लाइक आई सेड कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स, डिसिप्लिन. प्लीज स्टार्ट बिल्डिंग दिस स्किल्स बिकॉज एसएसबी में इंटरव्यू में क्या हो जाता है, एक एटीट्यूड रहता है ना हमारा कि भाई आई विल फेक इट टिल मेक इट. वो जो आप फकाड़ बिल्ड करते हो, इट फॉल्स डाउन और ब्रेक्स अवे ड्यूरिंग एसएसबी प्रोसेस. वो इतनी रिगरस हो जाती है, आपको सोचने के लिए टाइम भी नहीं मिलता. लाइक एंड आपकी ट्रू पर्सनैलिटी ही बाहर आती है. करेक्ट. एंड दैट it's very difficult to build that true personality in short amount of time. इसलिए start early. So when you say early, 7th 8th से start कर देना चाहिए? So actually as early as 5th standard से there are a lot of defense related exams. Okay. हाँ. Now this is more to the parents who are watching this podcast. अगर आप 5th standard में हो तो there is something called AISSE, All India Sainik School Entrance Exam. There is also something called RMS, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एग्जाम. अगर बच्चा 5th स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर रहा है, एटलीस्ट उसको एक झलक मिल जाती है कि भाई व्हाट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ओके. पास होना हो दैट्स ऑलटुगेदर डिफरेंट थिंग, बट एग्जाम देने के बाद उसको समझ में आता है ओके देयर इज समथिंग दिस. देन द किड विल स्टार्ट डिगिंग डीपर. When you enter a 7th standard, there is one more exam called RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज. Okay. Which admits students in 8th standard. By the way, that is only one college in India which is in Dehradun, and there are Big. 30 odd seats. हर स्टेट से एक ही स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाता है, महाराष्ट्र से 2 हो जाते हैं. ओके. यस. ओके. अगर ये भी नहीं हुआ तो देन इन 9th स्टैंडर्ड अगेन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम RMS फॉर 9th स्टैंडर्ड एडमिशन के लिए है. 8th स्टैंडर्ड में दे सकते हो. ओके. यस. ये तो होगा 9th स्टैंडर्ड का एडमिशन. महाराष्ट्र के लिए देयर इज अ स्पेशल एडवांटेज. वी हैव समथिंग कॉल्ड SPI, सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट इन महाराष्ट्र. आई कैन टॉक मोर इन डिटेल अबाउट दिस एज वेल. जो बच्चा भी 10th स्टैंडर्ड में ही कैन गिव दिस एग्जाम and he can get into the college called SPI, which is government funded college, which specifically trains students for NDA exam. तो preparation starts very early. मतलब मैंने आपको शॉर्टकट पूछा था, आपने बोल दिया कि तैयारी तुम 6 साल पहले से चालू कर दो. हाँ, मतलब क्या हो जाता है कि कुछ कुछ बच्चे they are very keen to enter defense sector. करेक्ट. नहीं, बट आई अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस ऑल्सो, क्योंकि आप बोल रहे हो कि वो 5 दिन का इतना रिगरस प्रोसेस है. आपका
ओरिजिनल पर्सनालिटी बाहर आना ही है, Yes. तो इट्स बेटर कि तुम उस पर्सनालिटी को 6 साल पहले से तय बनाना शुरू कर दो, Correct. सो दैट उस टाइम पे आपको फेक करना ही नहीं पड़े. Yes. You will be as ready as one should be at that point of time. Yes. Exactly. Yes. Okay. Great, great. I think बहुत चैलेंजिंग और डिमांडिंग है ये पूरा डिफेंस सेक्टर. Yes, yes. मतलब why it becomes challenging, demanding? You need to study. You need to be physically fit as well, and you need to develop your personality. Like if you see जो बच्चे अभी IIT की प्रिपरेशन करते हैं, JEE की प्रिपरेशन करते, they are very single minded. सिर्फ पढ़ते. आपने भी IIMs किया है, so even you think कि सिर्फ पढ़ना ही किया है? I would say yes. अच्छा, okay. Lot of my education was focused on studying only. Like हाँ. I hardly did anything apart from studying. Correct. हाँ, अहमदाबाद जाना is not a joke, so I understand that. Yes. Okay. So what kind of ऐसे कौन से बच्चे हैं कि जिन्होंने डिफेंस चूज ही नहीं करना चाहिए? डिफेंस चूज नहीं करना चाहिए. सो एक्चुअली आई वुड रादर ट्विस्ट अ क्वेश्चन अ बिट. डिफेंस कौन से बच्चे ने चूज करना चाहिए, एंड देन आई विल आंसर सेकंड पार्ट. वन इज, लेट्स से यू वांट अ एडवेंचरस लाइफ, कि भाई आपको खेलकूद भी पसंद है, आपको अच्छा करियर भी करना है. डिफेंस इज लाइक वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू. अगर आपको एडवेंचरस लाइफ चाहिए, यू वांट अ रिस्पेक्टफुल लाइफ, यू वांट टू सर्व योर कंट्री, डिफेंस इज द ऑप्शन यू शुड चूज. नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, किसको डिफेंस में नहीं जाना चाहिए. सो देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स लाइक दे आर, लेट्स से उनको कोडिंग बहुत पसंद होती है, उनको लेट्स से फिजिक्स बहुत पसंद है. दे आर व्हाट आई वुड से अ साइंटिस्ट टाइप ऑफ माइंडसेट होता है. और जिनको बाहर जाना पसंद नहीं, खेलकूद पसंद नहीं है, लोगों से बात करना पसंद, दे आर क्लासिक इंट्रोवर्ट. समझ में आ जाता है. आई थिंक दे शुड नॉट चूज डिफेंस. देयर आर अदर बेटर अपॉर्चुनिटीज टू सर्व योर कंट्री. यू कैन, मतलब दे कैन चूज दोज अपॉर्चुनिटीज. ओके. एंड अगर हम पढ़ाई की बात करें, इंटरव्यूज की बात करें, पर्सनालिटी ट्रेट की बात करें, तो कुछ ऐसा एक कॉमन ध्यान में आया है कि ये बच्चे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड तो होते हैं, बट ये लोग क्लियर ही नहीं कर सकते अपार्ट फ्रॉम साइंटिस्ट माइंड. क्योंकि आप जिन बच्चों की बात कर रहे हो वो ऑलरेडी बहुत स्मार्ट है. Correct. मैं ऐसे बच्चे की बात कर रही हूँ जो डिफेंस को सोचते हैं कि अरे यार कुछ नहीं, मस्त लाइफ रहेगा, एक ही कैंपस के अंदर रहना है, दोस्त अच्छे बन जाएंगे, मेरे को स्पोर्ट्स में बहुत मजा आ रहा है. Correct. बट फिर भी ऐसा कुछ है कि जो नॉर्मल बच्चा नहीं कर पा रहा है, मतलब नहीं कर पाएगा. Okay. So actually there are certain personality traits, like I have consulted so many students, so दिखाई देता है कि करेक्ट. इसका हो सकता है. एग्जैक्टली. करने तो हो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. Yes. Now I will tell किसका हो सकता है. Like someone who is extremely adaptable type of person. For example, डिफेंस में क्या हो जाता है कि you are going to face n number of situation जो जिंदगी में आपने कभी फेस नहीं की है. एंड वो दिखाई देता है कि क्लासरूम में अगर कोई बच्चा जल्दी अडेप्ट कर लेता है. लेट्स से कि मैं एग्जाम में समटाइम्स आई पुट रॉन्ग क्वेश्चंस जस्ट टू टेस्ट हाउ स्टूडेंट्स रिएक्ट. कुछ Okay. बच्चे होते हैं वो ट्राई टू आंसर क्वेश्चंस, कुछ बोलते कि कंप्लेन कर देते हैं. मुझे वो पहला हिंट उधर मिल जाता है कि जो कि ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हैं ना, मेनली वो नहीं जाएंगे डिफेंस में. Okay. दैट इज Okay. वन कोर पर्सनैलिटी से. So that's how you test it. यस. Okay. Okay. हाँ, बच्चों में Next. टेस्ट कर हाउ डू यू रिएक्ट. हाँ. सेकंड इज हाउ डू यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. Hmm. मतलब डू यू गिव अप और डू यू कीप ट्राइंग. वो एक अनदर पर्सनैलिटी ट्रेट होता है. क्लास में कभी कभी आई डू टफ क्वेश्चंस. देयर आर बच्चा एक बार ट्राई करता है, गिव अप कर देता है. देयर आर कुछ एक दो दिन भी ट्राई करते हैं. आई नो कि ये बच्चा सिलेक्ट हो ही पाएगा. So to put in very simple words, if you are able to adapt to a situation, solve the problem and find a way to go ahead, there is high chance you will get into this step. But आप सिर्फ कंप्लेन करते रहोगे, आप ट्राई भी नहीं करोगे, आप गिव अप करोगे, very low chance. Correct. Okay. Okay. Great. So before we end, one last question. Yes. Is there one thing जो जिसको डिफेंस करियर स्टार्ट करना है आज से, they should start doing it from today right now? One thing which I would suggest is discipline. Be very diligent about the things you do. Be punctual, complete your homework on time, respect your elders. So out of all these things, one thing which I have to point out is the discipline, because that's the core personality trait of any defense officer. Okay. Yes. Great. We started with discipline. We are ending with discipline. Thank you so much for this. I think this was very insightful and very important session for all the defense aspirants. Thanks a lot. So thank you so much guys for watching this episode. If you have liked this episode or if you want more information specifically about defense as a career, हम लोग विलास सर की information नीचे दिए गए caption में दे देंगे, so that you can connect them via email or phone number. And if you have liked this episode and if you know somebody who wants to enter into the defense, उनके साथ ये episode 100% जरूर share कीजिए. Please subscribe to our channel
to keep looking for more such career options. And if there is any other career option you want us to cover, do let us know in the comment section. Thank you so much for watching. Thank you, ma'am. Thank you.